विनेश फोगाट है, इसको यही नहीं पता जुलाना के अंदर गांव कौन से हैं, तो ये क्या विकास करवाएगी। हरियाणा के अंदर जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले नंबर पर जीतेंगे और नंबर 2 पर ये लड़की आएगी। आप देख लेना विनेश फोगाट। हम तो जी हुड्डा टाइम में भी खुश थे, अब भी खुश है, आगे भी जो आ जाएगा उसमें भी खुश रहेगा। पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी जीत है वो हुड्डा साहब के बाद जुलाना से होगी। इस बार हवा किसकी लगती है? कांग्रेस है, कांग्रेस का तो माहौल बना ही हुआ है। हर एक गाँव में जो है इसकी लगभग 80% वोटें मिलेंगी इसको। देखिए, ये सिंपैथी होती है, सिंपैथी शॉर्ट टर्म होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है। लेकिन जो जुलाना हल्का है वो कोई खिलाड़ी नहीं चाह रहा, वो अपने लिए एक एमएलए देख रहा है, एमएलए जिसमें पॉलिटिशियन के गुण हो, लेकिन वो गुण तो शायद विनेश फोगाट में नहीं है। ये प्लेयर है रेसलिंग की, ये आया है, ये जुलाना का भाग्य अच्छा भाग्य था, इसलिए ये जुलाना का कल्याण करेगी, काम कराएगी। खट्टर साहब बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे हैं 4.5 साल। उस 4.5 साल को आप कैसे देखते हो और खट्टर साहब को आप कैसे देखते हो? खट्टर साहब ठीक टाइम पास करके बढ़िया ईमानदार आदमी थे, अपना ठीक अच्छा टाइम पास करके। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਣਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਵੇ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ ਸੜਕ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੁਲਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੁਲਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪੈਥੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੈਪਟਨ ਯੋਗੇਸ਼ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਡਾਂਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਡਾਂਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦਲਾਲ WWE ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2019 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ 1,73,645 ਨੇ। ਜਾਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੇ 81,000 ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 33,608 ਵੋਟਰ ਇੱਥੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਨੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 39,661 ਵੋਟਰ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਯੋਗੇਸ਼ ਬਿਰਾਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਾਤ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਵਿਤਾ ਦਲਾਲ ਵੀ ਰੈਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, WWE ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੈਸਲਰ ਕਵਿਤਾ ਦਲਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ WWE ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਯੋਗੇਸ਼ ਬਿਰਾਗੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜੇਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਡਾਂਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਡਾਂਡਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਕਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾर्टियां ਨੂੰ उतारे ने ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ सोचते हैं। आओ फिर चलते हैं। और क्या माहौल लगता है यहाँ पे सियासी? माहौल ये है बेटे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है, इसकी सारी जान पहचान है और ये यही इसकी शादी कर रखी है। जुलाना के पास ही गांव है, वो भी पहलवान है, सोमवीर राठी है। तो इस करके ने यानी का एरिया होगा। मेरा गांव बीबीपुर है, वो भी इसी हल्के में पड़ता है। और ये गोपाल गोयत एडवोकेट है, ये इसने भी नाम भर रखा था और इसने भी इसके समर्थन में वापस ले लिया है। और ऐसा माहौल है कि हर एक गाँव में जहाँ भी ये विनेश फोगाट जाती है वहाँ पर जितनी भी गांव की औरतें हैं, लड़की हैं, बूढ़ी माता है, कोई जवान है, सारी जो है वो आती हैं, इसकी बातें सुनती हैं और सारे आदमी आते हैं। और हर गांव में जब जाती है ना, ये कम से कम भी हज़ारों की संख्या में जो है मोटरसाइकिल ट्रैक्टर लेकर के 2-3 किलोमीटर से इसका स्वागत करते हैं। और ये सौभाग्य है जुलाना क्षेत्र का कि इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है। ये प्लेयर है रेसलिंग की, ये आया है, ये जुलाना का भाग्य, अच्छा भाग्य था, इसलिए ये जुलाना का कल्याण करेगी, काम कराएगी। और हर एक गाँव में जो है इसकी लगभग 80% वोटें मिलेंगी इसको और 20% में और जितने भी खड़े हैं ना ये आ लिए और ये बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेगी। 80% बहुत बड़ा आंकड़ा कह रहे हैं आप। टोटल जो वोट पड़ेगा ना उसका 80% कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि मैंने गांव घूम के देख लिया। कम से कम भी मैंने 40, 45, 50 गाँव में जाके देख लिया, इसके साथ जाके देख लिया मैंने, अलग भी जाके देख लिया मैंने। मैं बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको। और मैं मास्टर रिटायर हूँ, मेरे को सारा ज्ञान है इस हल्के का, मेरी 71 साल की उम्र है, मैंने हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट पे चोन लड़ रही हैं, पर कांग्रेस पिछले 2005 से लेके अब तक कांग्रेस एक बार भी जुलाना हल्के में नहीं जीत सकी है, इस बार जीत जाएगी? मैंने आपको बता दिया ना, अब की बार ये जीत जाएगी। क्या बहुत हरियाणा के अंदर जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले नंबर पर जीतेंगे और नंबर 2 पर ये लड़की आएगी, आप देख लेना विनेश फोगाट।
और मैं तो ये धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस पार्टी का, खासकर जो है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिन्होंने इसको टिकट दिया है। ये तो हमारे जुलाने के भाग्य जागे हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कांग्रेस पार्टी का और ख़ासकर इन दो नेताओं का। कांग्रेस जो है इतना काम इन्होंने 10 साल संघर्ष किया है हर अन्याय के खिलाफ। चौधरी दीपेंद्र सिंह और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दिन भी घर नहीं रहे, कभी कोई प्रोग्राम, कभी कहीं प्रोग्राम। हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने तो हर कर्मचारी का, हर किसान वर्ग का और जितने भी व्यापारी हैं हर एक की मदद करते हैं, जाते हैं यहाँ। ये तो इतने लोकप्रिय नेता है जिसकी कोई हद नहीं, उनकी वजह से वोट मिल रही हैं। फिर ये लड़की भी जो है ये अच्छी खिलाड़ी है, प्लेयर है, इसकी वजह से है। हाँ। सर आपका नाम क्या है? गोपाल गोयत एडवोकेट। अच्छा, आपने यहाँ से अप्लाई किया था मैंने कांग्रेस के लिए। हाँ जी, तो हम टोटल 86 किया था और विनेश जी को मिली है टिकट और हम बहुत खुश हैं। 86 के 86 ने विनेश का समर्थन किया है और पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी जीत है वो हुड्डा साहब के बाद जुलाना से होगी। हाँ जी। कांग्रेस में या बीजेपी में, हमने दोनों ही पार्टियों में ये देखा है कि जब टिकटें दी गई उसके बाद बहुत नाराज़गी थी, बगावतें भी हुई हैं, अलग से जाके चुनाव भी लड़ रहे हैं कई उम्मीदवार जिनको टिकटें पार्टी ने नहीं दी। आपके हल्के में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? हमारा 86 थे, एक ने भी नहीं किया। 86 के 86 दिन रात, कोई सोमवीर राठी जी के साथ, कोई विनेश जी के साथ, हर दिन प्रत्येक गांव में उनके साथ जाते हैं, अपना पूर्ण समर्थन देते हैं और पूरी ज़ोर शोर से मेहनत कर रहे हैं और कम से कम भी 50,000 से जीतेंगे विनेश जी। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे सियासी माहौल कैसे है? देखिए यहाँ पे सियासी माहौल है, यहाँ पर जो पिछला टाइम रहा है यहाँ पर कोई भी अच्छा विधायक नहीं है और जनता अब की बार ये सोच रही है कि यहाँ पर हम एक अच्छा नुमाइंदा अपना चुन के विधानसभा में भेजें ताकि वो जुलाना की जो ये बदतर हालात है उसको ठीक कर सके। इस बार हवा किसकी लगती है? देखिए इस टाइम हवा जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस का तो माहौल बना ही हुआ है, लेकिन जो बीजेपी ने जो ये पासा फेंका, ये पैतरा फेंका है, वोटों को पोलराइज्ड करने का जो ये तरीका है, क्योंकि यहाँ पर जो जाट कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है और उनके 4 कैंडिडेट यहाँ पर हैं और एक कैप्टन योगेश बैरागी को यहाँ पर उतारा है बीजेपी ने, जो 1 लाख वोटों के ऊपर कमांड रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आशंका बनी हुई है कि वोटों का पोलराइजेशन ना हो जाए। अगर वोटों का पोलराइजेशन होता है तो कैप्टन योगेश बैरागी है वो अप है और 2nd नंबर पे विनेश है, 3rd नंबर पे डॉक्टर सुरेंद्र लाठी है जी आज के टाइम में। और ये जो माहौल है ये बदलेगा, ये चेंज हो सकता है यहाँ पर जी। सर बीजेपी का कार्यकाल रहा है हरियाणा में 10 साल का, आप उस 10 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हम तो जी हुड्डा टाइम में भी खुश थे, अब भी खुश है, आगे भी जो आ जाएगा उसमें भी खुश रहेंगे। हाँ जी। काम किए हैं? काम तो जैसा सरकार की नीतियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग करती हैं सरकारी काम। तो ये नहीं कह सकते, किसी भी सरकार को हम नकार नहीं सकते कि भाई वो सरकारी काम नहीं करती। अपनी जो पॉलिसी बनती है उसी प्लान के हिसाब से काम सभी करते हैं। खट्टर साहब बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे हैं 4.5 साल, उस 4.5 साल को आप कैसे देखते हो और खट्टर साहब को आप कैसे देखते हो? खट्टर साहब ठीक टाइम पास करके बढ़िया ईमानदार आदमी थे, अपना ठीक अच्छा टाइम पास करके। फिर उनको हटाना क्यों पड़ा? ये तो पार्टी की नीतियाँ हैं। आगे इलेक्शन आ रहा था तो अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं, भाई चेंज करो उसमें आप करने के लिए। तो हुई है अब कुछ टाइम के बहुत एंटी कमेंसी हो जाती है। एंटी इनकम्बेंसी 10 साल का क्योंकि कार्यकाल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक भी है। क्या आपको लगता है, जैसे पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। पंजाब में भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने किया था, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे उनको हटा के चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। पर उसके बाद जो ये कांग्रेस का एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया, आम आदमी पार्टी उससे बाद सत्ता में आई है। आपको लगता है जो बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट हरियाणा में किया है वो सफल होगा? मे भी हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है ऐसा, ये हम ये नकार नहीं सकते, भाई नहीं हो सकता। ये तो कोई ज़रूरी नहीं भाई एक आदमी कोई काम कर रहा है वो फेल हो जाए भाई दूसरा ही फेल हो जाए, ये कोई कंपलसरी नहीं है। सर
कविता दलाल को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है, आम आदमी पार्टी ने उन्हें उतारा है। सबसे पहले तो जिस तरीके से पहले चर्चा चल रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, पर वो बात सिरे नहीं चढ़ सकी, जो भी कारण रहे होंगे। उसके बाद एकदम से, क्योंकि विनेश फोगाट अपने आप में एक बड़ा नाम है, रेसलर वो रहे हैं, एक सिंपैथी फैक्टर भी ज़रूर उनके साथ जुड़ा हुआ है, और उनके ऑपोजिट आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को उतारा है। एक इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट विनेश फोगाट के ऑपोजिट उतारना, वो भी उस समय जब गठबंधन नहीं हुआ, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो कविता दलाल फाइट में आई, कविता दलाल को आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर उतारा है। ये सिर्फ इसलिए उतारा है कि जैसे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना गठबंधन करना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस उसके लिए एग्री नहीं थी। तो आम आदमी पार्टी ने ये सोचा कि इनकी सीट को कैसे खराब किया जाए। तो ये जो कविता दलाल, ये पहले भी आम आदमी पार्टी में थी और WWE की अच्छी रेसलर रही है, और जिस गोत्र से ये बिलोंग करती है, क्योंकि ये दलाल है और यहाँ पर दलालों के 12-13 हज़ार वोट है, उन वोटों को अगर ये कैप्चर करती है, उन वोटों को अपने साथ जोड़ती है, तो ये विनेश फोगाट को हरा देगी। और डॉक्टर सुरेंद्र लाठर हैं, जिसके साथ समस्त सभी लाठरों के यहाँ पर 12-13 हज़ार वोट हैं, और उन टोटल गांवों के जो वोट है वो 35-36 हज़ार के अराउंडिंग है। तो वो यहाँ पे विनेश को टक्कर देंगे और शायद वो जीत भी सकते हैं। जी, आपने जिक्र किया कि कविता दलाल टक्कर दे सकती हैं, क्योंकि वो भी एक रेसलर रह चुकी हैं। विनेश के साथ, जैसे मैंने पहले भी बात करी थी, एक जो सिंपैथी वोट है वो भी आके बहुत जुड़ी हुई है। क्या आपको लगता है कविता दलाल उस सिंपैथी वोट को कैश करने में कामयाब हो पाएंगी? देखिए, ये सिंपैथी होती है, सिंपैथी शॉर्ट टर्म होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है। लेकिन जो जुलाना हल्का है वो कोई खिलाड़ी नहीं चाह रहा, वो अपने लिए एक MLA देख रहा है, MLA जिसमें पॉलिटिशियन के गुण हो। लेकिन वो गुण तो शायद विनेश फोगाट में नहीं है, क्योंकि जो एक खेल में और लेजिस्लेचर है, जो अपने काम जनता के लिए जो काम करना है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और मुझे नहीं लगता कि जनता उनके साथ जाएगी। इस बार हवा किसकी लगती है यहाँ पे? हवा तो मैम देखो, जो भी कैंडिडेट अच्छा होगा, जो युवा के लिए कार्य करेगा, उसके साथ हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर हैं, इन्होंने हर गांव में लाइब्रेरी को ओपन कर रखा है, जहाँ पे युवा बैठ के पढ़ रहे हैं और नौकरी हासिल कर रहे हैं। तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, जो हमारे साथ स्टैंड कर सके। जो क्षेत्र के मतलब जैसे विनेश फोगाट है, इसको यही नहीं पता जुलाना के अंदर गांव कौन से हैं, तो ये क्या विकास करवाएगी? नहीं, उनका ससुराल तो यहाँ पे है, पता होगा। तो वो उनको नॉलेज तो नहीं है ना, तो मतलब कैंडिडेट का चेहरा अभी तो उनके ससुराल से उतारो फिर कोई। जैसे सुरेंद्र लाठर हैं, इन्होंने लाइब्रेरी ओपन कर रखी हैं, जो मतलब फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आता है या कोई बच्चा मेरिट लेके आता है, उसको टैब देते हैं, स्कूटियाँ देते हैं, मतलब एजुकेशन को अपर लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें तो उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए। इससे पहले जो अमरजीत डांडा रहे हैं विधायक यहाँ के, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कार्यकाल अच्छा रहा है जी उनका, बिल्कुल जैसे हम बैठे हैं लोगों के बीच में रहे हैं। वो सड़कें तो मैम बनेंगी, जरूरी थोड़ी है 2-4 दिन में बन जाऊंगी। 5 साल में फिर ऊपर तो गवर्नमेंट नहीं थी ना, सीट तो 10 ही थी जेजेपी की। नहीं, फिर जेजेपी के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं जी, भी नहीं बनी सड़कें। तो मैम वैसे खट्टर जी थे, वो तो खुद सीएम थे, जब भी नहीं बनी तो इसकी डिप्टी सीएम की क्या चलेगी। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਡਾਂਡਾ ਜੇਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ MLA ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੁਲਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।